Good evening, friends. Today we are going to discuss on a very important topic, international relations, and this is about the course EPS 7 International Relations. We will be in this topic covering a number of issues, especially to start with the study of international relations and its contemporary relevance in a changing contemporary world order, and also we will also be focusing on the issues like neoliberalism, institutions and interdependence, neoliberalism, bipolarity and confrontation. Other than this, we will also be discussing international political economy, global trade regimes. In there, we will have opportunity to bring in our discussion some of the issues like Doha round of negotiations and multilateral negotiations and regional issues. We will also be focusing our discussion on the important issues of international political economy and foreign policy. And at the end, we will also bring in some of the important issues like international terrorism, changes in the nation statehood and new security challenges. I want Professor, I just want to introduce to you that today with us we have Professor K.D. Kapoor, former Professor of International Relations from JNU. Presently he is UGC Fellow. I request Professor Kapoor to initiate discussion. Thank you, Professor Gopal. The first aspect we could focus on why study international relations, or what is international relations. Now, if we look at it, the international relations before the Second World War was confined primarily to the European powers. After the end of the Cold War and then with the process of decolonization, many countries became free, and the number of nations who were participating in the international relations increased much more than what they were earlier in the pre-war period. International relations primarily means the interaction amongst nations, and the study would be to study their behavior, why and how they behave as they do in the international relations. This could touch their study of their foreign policy, their trade policies, their diplomacy, their trade interaction, their investment policies. Whole lot of issues could be discussed under the international relations. So since the Second World War, the international relations has become one of the core area as a part of social sciences. And particularly after the 60s, it has assumed much more importance. So keeping in view that international relations, we can say now is a part and parcel of social science stream in most of the universities, particularly in the area of political science. And the study of international relations gives us an idea of particularly of the developing countries, where do they stand in the international system, what is their position in terms of their economy, what is their growth rate, how they are dependent on the rich countries, and how they can plan their own economies or developmental models which they can develop so that they can meet their developmental aspirations for them. This has been the core issue in the 60s, the feelings of the developing countries or those countries who became independent after the Second World War and they were earlier colonies. It was raised in the United Nations, and they didn't want to be a part of the Cold War politics, but willingly sometimes they were pushed into it. But their primary focus was
on the developmental aspiration. What should they do to achieve the goals of their people, the developmental goals in terms of the poverty eradication, in terms of health, in terms of meeting the livelihood consideration of the people. So this movement actually has been discussed much in details in terms of third world movements, through non-alignment and other regional groupings where this, or through United Nations Conference on Trade and Development. So these were the forums on which the developing countries could focus their point of view, and they in the process got many concessions from the developed countries. So briefly one can say that since the Second World War, international relations has been one of the core areas, particularly for the developing countries, because it gives them a forum. I mean, it has provided them certain areas where they can negotiate and in the process gain something. Whether they have succeeded it or not, that's a question of analysis. Over the years they have got something, but in many areas they have probably not been able to get what they actually wanted to derive out of that. And then we can say that we can come to the present position, the 60s and then the 70s and 80s, how they have been, and various issues have come up before them in the area of trade, in the area of development, in the area of environment, where they have their own point of view. So if we look at it, the study of international relations over the years, one can say they have been through various organization, coalition groups like non-alignment or G77, in the UNTAC, in the Uruguay round, or in the United Nations, they have been trying to get what they really want for their people, through these institutions. So this could be the starting point, and then we can go ahead with the particular issues for that matter. Thank you, Professor Kapoor. In your introduction, you said that international relations, largely the study of international relations, its importance has grown after World War II. But prior to that, international relations was there, but it was confined to only Europe. Well, if international relations becomes very important in the changed world after World War II, you said that especially the developing countries are referring to their poverty, referring to their developmental issues. I understand that certain issues which were important for some of these newly developed countries in terms of forging good relations with the countries have like some of the European countries who had a good economy and technology, so on and things like that. But what prompted some of the newly developed countries to face many hurdles in the process of developing, like India in the South Asian region was a very large country in comparison with most of the countries in the region, when you compare in terms of their economy, in terms of their political stability. But how, what kind of the problem some of these countries have faced in terms of developing good relations and also leading to economic development? Professor Gopal, this is very, very important aspect of international relations. As soon as these countries became independent, they were faced with problems. One area was the political problems. That is, they were in a Cold War context where they had to side with one group or the other. One group, that is the group or the bloc led by United States of America, and the other led by Soviet Union. So this Cold War politics. So one dimension was Cold War politics. The other dimension was that instead of participating in the Cold War politics, they had to address to the problems of their development. Now, when they address these problems, they definitely face certain problems. I would like to highlight some of these issues, some of the problems which they really face.
if you look at it, most of the developing countries, they had been exploited, they have been colonies of the developed countries, European countries, and over the years, their resources have been exploited by these countries. When they became independent, their expectations were industrialization. They wanted to develop, growth, industrialization. And how do they go about that? Obviously, they have to import machinery from developed countries so that the industrial process could take place. And for that, obviously, they would need money. That is the foreign exchange. And most of these countries, after initial problems, got integrated into the global market, in the global economic system, particularly the Western economic system. I am not talking about the Soviet system, because many of them sided with the Soviet system, but by and large, when we talk about the global system, we talk of the Bretton Woods system, in which we have basically three important institutions like IMF, World Bank, and GATT, which was created in 1947, and the earlier two institutions were created in 1944. Now, as part of this Bretton Woods system, most of these developing countries had to work within the system. Now, the problem immediately they faced was the problem of foreign exchange. How do they earn foreign exchange to buy these machineries from these rich countries for their industrial development? And if we look at it, what could they sell to earn foreign exchange? They could sell only the raw materials, because most of the developing countries were raw material producing countries. We call them primary commodity producers. Many of them were producers of single commodity, many of them were producers of two commodities, but by and large their dependence was... Meant to say that when these countries, they became independent, but practically they didn't have any technology. Oh yeah, yes, but they didn't have it colonial powers, yeah. So whatever their infrastructure they had established, so they carried with them, and practically the most of these the independent countries, they have to they only produced raw materials again supplying to the developed. So actually even during the colonial periods, in most of these developing countries there was no industrial development. They were only providing raw materials, and that was, I mean, what the great principle, that is comparative cost advantage, is that they could produce only the raw material. So the raw material was taken to the metropolis and it was processed there. So that situation still continued. So they were providing raw material, and the raw material prices somehow, I mean, I would like to mention here, over the years have been declining. So what they could earn was only through the raw material, and what they were spending was on a number of issues, like on the industrial capital goods, or for instance, buying military equipment, because they were faced with security problems also, or sometimes luxury goods also, because the new elites in these countries were interested in the luxury goods, So this definitely created a situation where most of these developing countries had a balance of payment problem. When we say the balance of payment problem, that is, they were importing much more than what they were exporting, and their earnings were much less than what they were spending. Now this balance of payment problem was created because of their dependence on raw material, and this made them dependent on the rich countries. So this a situation emerged, which probably we can say, some people have talked about. It was a situation of development of underdevelopment. Over the years, these countries became much more dependent on the industrialized country, on the developed countries, and that equation remained for many years, or even one can say still remains there. मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर कपूर ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए और उसका उत्तर भी दिए हैं. अगर कोई हमारे छात्र जो है स्टडी सेंटर में, रीजनल सेंटर में, अगर वहाँ पर आप बैठे हो और हमारी इस चर्चा को आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमें सवाल करें. एक तो मुझे प्रोफेसर कपूर जो है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और ये मैं हिंदी में संवाद कर रहा हूँ. ये मैं समझता हूँ ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत सारे हमारे छात्र हिंदी भाषी भी हैं, तो उनकी जो है
उपयोग के लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है। लेकिन एक जो है ni मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये लगा कि आपने कहा कि कोई अंतर नहीं नजर आया मुझे, क्योंकि उदाहरण तौर पर जो है नि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो जो है नि उस दौरान जो है नि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया, और रॉ मटेरियल जो है नि यहाँ से जाता था ब्रिटेन, और वहाँ से जो प्रोडक्ट तैयार होते थे फिनिश्ड गुड्स जो है नि वो हिंदुस्तान की मार्केट में लाके बेचते थे। लेकिन आपका जो है नि जो कहने का मतलब मैं इस तरह समझ रहा हूँ कि इवन बहुत सारी जो है नि जो देश हैं आज़ादी के बाद 1945 के बाद द्वितीय महायुद्ध के बाद बहुत सारे देश जो है वो सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के हद तक ही रह गए, क्योंकि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और कोई उनकी जो है नि इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुई और कोई उपलब्धि नहीं हुई, और उन खास करके बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी प्रॉब्लम जो है नि बहुत सारी इन देशों में रहा है। इसका मतलब है कि कुल मिला के अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो जैसे कि आपने कहा कि जो शीत युद्ध की राजनीति है एक तरीके से द पॉलिटिक्स ऑफ कोल्ड वॉर आल्सो हैज प्लेड हैवॉक ऑन द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ दिस डेवलपिंग कंट्री। सो जो कि ये जो डोमिनेट हुआ इस तरीके से उनको जो है नहीं दबाया गया, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए हथियार की बात आती है या तकनीकी जो है नहीं कॉपरेशन की बात आती है, चाहे फाइनेंस की बात आती है, इकोनॉमिक जो है नहीं सपोर्ट की बात आती है। इन सब अगर मुद्दों को अगर लें, अगर चर्चा करें एक तरीके से जो है जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज रहे हैं वो बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं। और लेकिन मुझे ये कुछ आप हमारे छात्रों को कुछ प्रकाश डालिए कि आपने कहा कि 1960 के और 70 के दशक में कौन से ऐसे विषय थे, what are those the important issues that dominated the international relations? प्रोफेसर गोपाल, जहाँ तक डेवलपिंग कंट्रीज का सवाल है, हम ये कहना चाहेंगे कि भारतवर्ष सबसे पहला देश था जो आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद चाइना के अंदर रेवोल्यूशन आया 1949 में। परंतु हम ये कह सकते हैं कि बाई अर्ली 60s 61 62 तक जिसको हम कहते हैं, तब तक लगभग सारी दुनिया के एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश थे वो आज़ाद हो गए थे। तो पहली जो पॉलिटिक्स थी वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर थी अगेंस्ट एम्पीरियलिज्म, अगेंस्ट अपार्थेड यानी रंग भेद की नीति के खिलाफ या उपनिवेशवाद के खिलाफ। वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर यही मुद्दे थे और कोल्ड वार पॉलिटिक्स के अंदर इन मुद्दों के ऊपर ही बात होती थी, और ये जो नए देश जैसे आज़ाद होते थे उनकी मेंबरशिप की बात होती थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 60s के अंदर जो सबसे पहले जो ये इशू आया यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो ये कि कोल्ड वार तो है, हम कोल्ड वार में अब इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि बहुत सारे देश हो गए, और यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली थी वो पॉलिटिक्स भी बदल गई क्योंकि सो मेनी डेवलपिंग कंट्रीज वर देयर। नाउ दे सेड दैट वी वांट द फोकस टू बी शिफ्टेड टू द डेवलपमेंट इश्यूज। तो जब डेवलपमेंट इश्यूज पर आया तो वहां पर सबसे पहले बात ये हुआ कि इनकी डेवलपमेंट के बारे में क्या किया जाए। तो ये देखा गया कि मोस्टली जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है पर अधिक नहीं हुई है। तो इसलिए 60s के बाद यूनाइटेड नेशंस ने डेवलपमेंट डिकेड की घोषणा की कि 10 साल पहले 60s के होंगे, फिर 70, तो डेवलपमेंट डिकेड 1970 में 1960 1970 10 साल के डेवलपमेंट डिकेड। तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट डिकेड्स के साथ साथ ये भी महसूस किया गया कि क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर कोल्ड वार पॉलिटिक्स है और अभी कोल्ड वार चल ही रही थी, तो इसके लिए कोई अलग से फोरम बनना चाहिए जहां पर मूलतः जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके मुद्दों को सामने रखा जाए। तो उसके लिए सबसे पहले 1964 में एक संस्था बनाई जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अनटैक्ट। तो यहां पर ये सारे मुद्दे जो इनकी डेवलपमेंट से संबंधित थे उनको उठाया जाने लगा, और वहां ही क्योंकि दूसरे कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करते तो एक फोरम मिल गया जहां पर वो उसके ऊपर नेगोशिएट कर सकते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 1961 के अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बन गया, तो उनका भी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी जो एजेंडा था वो राजनीति से हटकर
इकोनॉमिक्स पर आ गया। और उसके बाद ये हम कह सकते हैं 60s का और अर्ली 70s का ये जो सारा फेज है, ये फेज है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज ने ये कहा कि हमें हमारे जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको मध्य रखा जाए, उनको फोरफ्रंट पर रखा जाए। और वो मुद्दे में ये आपको नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता जो था, ये तो ये आंदोलन था जो कि पूरी डेवलपिंग हाँ, कंट्री ये जो है इसमें इसके मेंबर थे। बिल्कुल हाँ, इसमें लेकिन actually- अभी तो इसकी कोई जो है इसका कोई महत्व तो है ही नहीं है, क्योंकि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब्दीली हुई तो जो है हाँ, वो हमारी नीतियां भी बदल गई, सबकी संस्था में जो है तब्दीली हाँ, आई। हाँ, तो हम हाँ। 70s की बात कर रहे हैं, तो 70s के अंदर ये एक तरह से यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज सबने मिलकर कुछ मुद्दे सामने रखे। वो मैं मुद्दे आपको यहां गिनवा देता हूं। जैसे सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था कि सॉवरेंटी ओवर नेचुरल रिसोर्सेस, कि जिन लोग देशों के पास जो खनिज है, मोस्टली जो खनिज है, मिनरल्स हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हैं। तो उन्होंने ये उठाया कि इनके ऊपर हमारा स्वायत्त है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, नेचुरल राइट्स हैं, नेचुरल सॉवरेंटी है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर उन्होंने अपनी सॉवरेंटी का कहा कि ये हमारी सॉवरेंटी, हम किसको बेचें किसको ना बेचें ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात थी। दूसरी बात इसके साथ ये थी कि क्योंकि ये जो कम्युनिटीज हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, ये जो प्रोड्यूस करते हैं और बेचते हैं, इनके प्राइसेस के अंदर, इनके मूल्य के अंदर बहुत उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्चुएशंस होती हैं। फ्लक्चुएशंस होने से ये होता है कि एक ही कम्युनिटी आप बेच रहे हैं, उसमें कभी भाव बढ़ता है कभी कम होता है, तो आपकी जो अर्निंग्स है वो स्टेबल नहीं होती है, तो हर समय आप लोन की लेने के चक्कर में रहते हैं। जैसे कि आज की तारीख में जो है पेट्रोल की जो है दर की जो है उतार चढ़ाव हो जाता है। तो अगर होता है तो जो है जैसे समस्त देश में, चाहे वो जो गरीब है अमीर है, हर तबके को जो है इसकी मार पड़ती है। इस हद तक की जो है एक तरफ तो जो है आमदनी जो है उस व्यक्ति की जो है उस लेवल पे नहीं है कि जो है वो उसकी जो है जो बढ़ोतरी है उसका झेल पाएगा। बहुत अच्छी उदाहरण तो है। लेकिन उस समय भी यही बात हुई थी कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइसेस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और क्योंकि रॉ मटेरियल कौन खरीदता, सवाल उसमें ये कि रॉ मटेरियल खरीदता कौन है। रॉ मटेरियल मूल्यतः ट्रांसनेशन कॉर्पोरेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वही रॉ मटेरियल खरीदती थी। तो अभी तब भी ऑयल की जो पोजीशन थी वो यही थी कि $2-2.5 में एक बैरल ऑयल मिलता था, और वो भी 7 बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियां थी वो उनको बाई करती थी। तो वो भी एक मुद्दा था, क्योंकि वो तो बाद में जाकर 1973 के अंदर ओपेक बनी, जिसने एक तरह से इसके प्राइसेस को बढ़ाया। पहला मुद्दा यही था। दूसरा मुद्दा यह था कि भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें फाइनेंस की जरूरत है, पैसे हमको मिलने चाहिए। तो एड जो है उसके बारे में बात की। जो एड है, किस तरह की एड मिलनी चाहिए, उसमें जो आप कहते हैं, आप एक तरह से एड जब मिलती है तो आर्थिक मदद की बात की उन्होंने। तो उस समय जो आर्थिक मदद होती थी उसको हम कहते हैं मोस्टली ये टाइड एड होती थी। व्हाट इज टाइड एड? टाइड एड का मतलब ये होता था कि जो आपको आर्थिक सहायता दे रहा है वो ये कहता था कि ये पैसे तो हमारे से ले लो, परंतु ये पैसे आप दूसरे की मंडी में खर्च नहीं करेंगे, ये पैसे मेरी मंडी में खर्च करेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो पैसा अंकुश लगा दिया। हाँ, अंकुश लगा दिया। आप हमको छोड़ के दूसरी तरफ नहीं जाएंगे सकते, तो वो पैसा आपको दे दें। शो तो कर रहे हैं कि आपको एक तरीके से दादागिरी, और ये कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करते हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, परंतु जो पैसा हम आपको देंगे वो पैसा आप हमारी मंडी में खरीदेंगे, और उसके ऊपर भी ये है कि आप क्या खरीदेंगे वो भी उसमें बहुत ज्यादा डिसाइड करते थे। इसमें हमारा भारतवर्ष का एक एग्जाम्पल है जिसमें हम कहते हैं PL 480, पब्लिक लॉ 480, जो अमेरिका ने हमारे साथ संधि की। उसके अंदर यह था कि उस PL 480 के अंदर जो टाई रेट थी, हम उनसे सिर्फ गेहूं खरीदते थे या छोटी मोटी चीजें, बेकार की चीजें जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर बिकती थी वो हमको उसमें, पर उसकी अकाउंटिंग हो जाती थी कि हमने इनकी एड कर दी। तो उसमें यह कहा गया कि हमको जो एड दी जाए वो अनटाइड हो, जिसको उसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना लगा हो, कोई अंकुश ना हो, और हमें उस पैसे का इस्तेमाल करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम कहां इस्तेमाल करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पेमेंट के लिए करें या मशीनरी किसी दूसरे देश से करने के लिए। तो ये बात उन्होंने उसमें। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं उसका हमें अधिकार होना चाहिए कि हम हमारा जो आर्थिक ढांचा है उसको हम कैसे चलाएं, उसके ऊपर अननेसेसरी
उसके ऊपर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम क्या डेवलप। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय इन कंट्रीज की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या थी, क्या इनके पास ऑप्शन थे। तो ऑप्शंस में हम ये कह सकते हैं कि उनके पास एक ऑप्शन जो उन्होंने अपने आप उस तरह माना हुआ था, क्योंकि सभी कंट्रीज के अंदर समाजवादी तत्व भी थे और दूसरे जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स भी थे, तो उस समय की जो स्ट्रेटजी इन कंट्रीज ने फॉलो की वो थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हम चीजों को वहां से इंपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे नहीं, आयात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने में हमारे पास पैसे नहीं है, उसके लिए पैसा देने के लिए नहीं, तो इसलिए वो चीजें हम अपने देश में बनाएंगे। बनाने के लिए ये कहा कि हम सिर्फ कैपिटल गुड्स जो हैं, जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उनको इंपोर्ट करेंगे और अपने यहां प्रोड्यूस करेंगे। परंतु ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, ये मूलतः जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है और या जिसमें बड़े राष्ट्र, जो धनी राष्ट्र थे, वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका कहने का ये अर्थ ये था कि आप एक तरह से खुली तरह से अपनी मार्केट को रखो और हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो इस बात के भी ऊपर क्या कि हमें पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम इंपोर्ट अपनी कैसे डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को बनाएं। इसके अलावा उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जो संसार की आर्थिक नीतियों को चला रहे हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है या यूनाइटेड स्टेट्स और गैट है, ये सारे के सारे 1944 में बने, 44 और 47 में, जब ये बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो थे ही नहीं, क्योंकि तब उनकी आज़ादी तो लगभग बाद में, जब 55 में और फिर 60 में हुई है। तो उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं के अंदर हमारा कोई योगदान नहीं है, इसलिए इनके अंदर भी इनके अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन छोटे छोटे राष्ट्रों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करती हैं, तो इसलिए उनके ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। और बाद में उस बात को मान भी लिया गया और उसके लिए एक कमीशन बिठाया गया, कमीशन फॉर डेवलपिंग ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ट्रांसलेशन कॉर्पोरेशन। यहाँ पर मैं रोकता हूँ, बहुत अच्छी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये हमें इस वक्त स्पष्ट हुआ है कि 1960 और 70 की दशक, बल्कि 80 की दशक तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो जितने भी जो है शक्तिशाली देश, जिनके पास पूंजी है, जिनके पास जो है सैन्य बल है और जिनके पास जो है रिसोर्सेस है, एक तरीके से जो है जो तीसरी दुनिया के देश, जो डेवलपिंग कंट्रीज हम कहते हैं, तो उनके ऊपर एक तरीके से बहुत बड़ा जो है उनके ऊपर दबाव था। मतलब जैसे कि आपने कहा कि टाई रेट की बात है, हाँ, कि कभी उन लोगों को जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के लिए अलाउ नहीं कर दिया। कई बार जो है छोटे देश जो है जहां पर उस देश के साथ जो गठबंधन है, अगर उस गठबंधन के से हटने से कई बार युद्ध भी हुए हैं। और खास करके जो है अब देखिए कि जो है हम लोग 70 से लेके 80 के दशक तक तो मैं समझता हूं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद और छोटे बड़े जो युद्ध हुए हैं वो सारे जो है तीसरी दुनिया के अंदर ही हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो एक तो जो है पैसा लो और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको पीट देंगे, और तरीके अलग अलग अपनाए गए। लेकिन एक तरीके से आज हम देखते हैं प्रोफेसर कपूर, आपकी जो है चर्चा से मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि आपने बहुत कुछ कह दिया और हिंट भी दे दिए हैं कि आज हम कहते हैं कि अफ्रीका जो है एक डार्क कॉन्टिनेंट है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार अमेरिका है, इसके जिम्मेदार जो है अन्य ब्रिटानिया है और दूसरे देश हैं। अब उनकी एड की बात आती है, चाहे सोमालिया में है, इथोपिया, अंगोला की बात होती है, या आज की तारीख में जो है अन्य जितने भी, इवन हालांकि जो है पेट्रोल की जो है खूब उत्पादन होते हैं नाइजीरिया में। राजनीति तो जो है आई, जो भी राजनीति हुई, अगर आप नहीं मानोगे तो उस जो है जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप रही हो उसके खिलाफ दूसरी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी जो है कई ऐसी जो है शक्तियां चलाई गई उस देश के खिलाफ, उस देश की जो है राजनीति के खिलाफ, और 2 देशों के बीच में, 3 देशों के बीच में जंग भी हुई। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात है और न्यू लिबरलिज्म की बात है, बाइपोलरिटी की बात है, इन 2 विषयों की जो है महत्वपूर्ण वो क्या चीज है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोमिनेट किया? प्रोफेसर गोपाल, आपने अफ्रीका का जो इश्यू है इसको उठाकर मुझे एक तरह से
प्रोवोक कर दिया कि मैं इसके बारे में कुछ कहूँ। उत्तेजित किया उत्तेजित किया है आपने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम थोड़ा सा पहले की बात कर लेते हैं, उसको पूरी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस सब मुद्दों के साथ साथ एक मुद्दा था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी था, उसके अच्छा, ऊपर उसको अभी समराइज करना चाहते हैं। समराइज करना ठीक है, चाहते हैं। अच्छी बात। और वो जो मूवमेंट चला उसका एक निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो 60s और 70s के बीच में ये जो मूवमेंट चला, उसका निष्कर्ष निकला कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसको हम कहते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स। 6th स्पेशल सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1974 के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लिया गया, ये सब जो मुद्दे मैंने गिनवाए हैं कि भी राष्ट्रों के अधिकार क्या हैं और उनमें खासतौर पर डेवलपिंग कंट्री के अधिकार क्या हैं, और ये माना गया कि अब इसकी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। 1974 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस पीरियड के अंदर एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट था जिसका मूल फोकस यही था कि डेवलपिंग कंट्रीज की जो प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको एक तरह से लीगल उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को प्रोवाइड की जाए और उसकी एक लीगैलिटी हो और एक तरह से उसको लीगल तौर पर यूनाइटेड नेशन माने। इसके बाद आपने थोड़ी सी बात अफ्रीका की है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अफ्रीका की जो पोजीशन है वो अभी भी वैसी ही है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 1980 ले आज तक जो है लगभग सभी जितनी रॉ मटेरियल्स हैं वहां पर उनके प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हैं। जो 1980 में थे वो सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को छोड़कर 4-5 कंट्रीज है जो ऑयल बनाते हैं, बाकी जितनी कंट्रीज हैं उनमें जो मूलतः वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है और उनमें खासतौर जो प्रोडक्ट है उसमें चाय है, कॉफी है, पेपर है, या इस तरह से कॉटन है, खनिज वस्तु है, कॉटन है, खनिज, बाकी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी जो रॉ मटेरियल्स हैं इनके प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हैं और बहुत ही अधिक तरह से डिक्लाइन। तो अब सिचुएशन ये है कि जो अफ्रीका है वो ऐसी स्थिति में है कि पूरी तरह से वो उनकी जो ग्रोथ है बहुत कम है और वो सारे के सारे एक तरह से जो न्यू लिबरलिज्म का शिकार कह सकते हैं कि वो वही पॉलिसीज जो उनको दी जा रही हैं वो उनको माननी पड़ती हैं। और सबसे ज्यादा जो लोन है उन्हीं कंट्रीज के ऊपर है, जो आर्थिक डेट जिसको आप इंटरनेशनल डेट कहते हैं, क्योंकि वो बार बार लोन लेते हैं। वो डेट ट्रैप में जो है ये फंस गए हैं, इसको कहा जाता है डेट ट्रैप। वो IMF से लोन भी लेते हैं, वो कमर्शियल बैंक से लोन भी लेते हैं, उसको रीपे नहीं करते हैं, फिर उसको रीशेड्यूल करवाते हैं या फिर कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, वो और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो परिस्थिति ये है कि उनमें से लगभग अगर देखा जाए तो अफ्रीका के अंदर इस समय 47 48 49 के करीब कंट्रीज हैं, अराउंड 50 कंट्रीज आप कहिए, 52 कंट्रीज हैं। तो उनमें से लगभग 33 ऐसे कंट्रीज जिनको हम कहते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, और वही कंट्रीज जो हैं जिनको हम कहते हैं हाईली इंडेटेड पुअर कंट्रीज, उनको एजुकेशनली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है उनके लिए। तो उनको कहते हैं HIPD, हाईली इंडेटेड पुअर कंट्रीज। वो मोस्टली अफ्रीका के अंदर है और कुछ कंट्रीज लैटिन अमेरिका के अंदर और कैरिबियन के अंदर है। तो इन ऑल उनकी जो संख्या है वो लगभग 40-45 के करीब है, और जिनका लोन बहुत ज्यादा, उसका अभी लोन माफ भी किया है, पर फिर भी अभी परिस्थिति जो वहां पर बनी हुई है वो यही है कि उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। यहां मैं एक एग्जाम्पल आपको, ये जो एक्सप्लॉयटेशन का प्रोसेस है उसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि अभी यूरोपियन यूनियन ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसको कहते हैं EPA, यूरोपियन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप अफ्रीकन कंट्री, हाँ अफ्रीकन, दिस इज मेंट फॉर ACP कंट्री, अफ्रीकन, कैरिबियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। हाँ, तो ACP कंट्रीज के साथ एक ये इन्होंने किया है जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अभी हाल में। हाँ, अभी हाल में उसमें 1 जनवरी से वो लागू है, 2008 से हो गया। अच्छा, ये एग्रीमेंट ये है क्योंकि जितने भी ये कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो मोस्टली यूरोपियन कॉलोनीज थी और उनके साथ एक बहुत ही एक समझौता था जिसके अंदर उनको मार्केट मिलती थी यूरोपियन यूनियन की। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ये है कि अब इन कंट्रीज को एक तरह से रेसिप्रोकल बेसिस पर उनको मार्केट खोलनी पड़ेगी। अभी तक तो ये था कि ये अफ्रीकन कंट्रीज अपनी जो प्रोडक्ट्स थी उनको ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री, मतलब उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, कोई कोटा नहीं होता था, आप जितना भी एक्सपोर्ट करना चाहें यूरोप में कर सकते थे। परंतु अब ये हो गया है कि अब ये जो
अधिकार है ये तो उनके पास है, परंतु अब उसके एवज में जो ईपीए के अंदर है उनको भी, अफ्रीकन कंट्रीज को भी अपनी मार्केट खोलनी पड़ेगी, और अगर नहीं खोलते हैं तो जो मार्केट उनको यूरोप के अंदर मिली हुई है उनके लिए बंद हो जाएगी। तो अब नतीजा ये हो गया कि बिल्कुल अनइक्वल रिलेशनशिप के अंदर अब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर अपनी गुड्स जो है आराम से भेज सकते हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा, क्योंकि अब उसकी रेसिप्रोसिटी की बात करते हैं। तो एक तरह से एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जिसमें बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज के जो नेता हैं या उनके जो वहां लीडर्स हैं, उन लोगों ने इसको वर्चुअली न्यू कॉलोनियलिज्म की सिचुएशन को बताया है, और इसके बावजूद के भी उनके डेट्स वगैरह को माफ किया गया है, पर वहां पर परिस्थिति सुधरी नहीं है। तो हम ये कह सकते कि न्यू लिबरलिज्म, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये 1980 से लेकर अब तक का पीरियड है, और यही पीरियड हम आप तो आमतौर पर कहते हैं ये न्यू लिबरलिज्म का पीरियड है, जिसके अंदर मूलतः एक तरह से वाशिंगटन कंसेंसस की बात जो है, एक ऐसा फॉर्मूला इन सब कंट्रीज को दिया जाता है आर्थिक मुद्दों को हल करने के लिए, जिसका नतीजा इन कंट्रीज के लिए कम से कम इन कंट्रीज के लिए कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं साबित हुआ। चलिए, मैं यहाँ आपको रोकता हूँ, लेकिन बहुत चर्चा जो है नी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हो रही है। हम लोग अफ्रीका से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, क्योंकि अफ्रीका का जो है नी हम लोग और भी एक जो है नी चर्चा अफ्रीका पे हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पे चर्चा की, लेकिन एक जो विषय है वो ग्लोबल ट्रेड रेजिम्स का जो डिबेट है, खास करके दोहा राउंड नेगोशिएशंस को लेके, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि आज की परिस्थितियों में जो ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, तो अगर ग्लोबलाइजेशन का जो इकोनॉमिक अवतार है या इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा जाए तो वो मूलतः ट्रेड का है। ट्रेड के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंट इश्यूज हैं उसके साथ। परंतु यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज की जो डिबेट चल रही है, दोहा राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इसका इतिहास में आपको बता देना चाहता हूं कि भी आखिरकार ये ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई है कि जिसके अंदर ये सारे मुद्दे हमारे सामने आ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 80s के अंदर इसमें मुख्य जो भूमिका है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है और यूरोपियन कंट्रीज की है। सारे अंतर्राष्ट्रीय जो ढांचे, ट्रेड ढांचे की बात है। तो 70s के अंदर ये हम मानकर चलते हैं कि भी जो अमेरिका की पावर थी काफी डिक्लाइन हो गई थी। इसके लिए आपने कहा कि जैसे वियतनाम युद्ध है और उनकी आर्थिक तौर पर काफी वो कमजोर हो गया था, और एक तरह से वो सिस्टम जो कि उन्होंने 1944 में बनाया था उससे भी हट गए थे, क्योंकि पहले एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड था जिसमें अमेरिका गोल्ड जो करेंसी थी इंटरनेशनल करेंसी थी, बाद में वो इससे भी हट गए और अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो गया है। और उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जिनको हम मानते हैं कि वो ब्रिटन वुड सिस्टम से हटकर एक तरह से इंडिपेंडेंट सिस्टम में और तरह का सिस्टम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में आ गए। तो 80s के अंदर जब प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन सत्ता में आए तो उन्होंने अमेरिकन पावर को दोबारा से असर्ट करने की कोशिश की, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में प्राइमेसी। ही वांटेड प्राइमेसी फॉर द अमेरिकन पावर, द पावर विच ही थॉट they have lost in the 70s during Carter period and during Nixon period। तो इसमें उसने सबसे पहले जो स्टेप्स खास करके वियतनाम और हाँ, जो है जो वियतनाम वार से उसके बाद अफगानिस्तान वाला इश्यू अन्य जो है उससे काफी नुकसान हुआ है। उनको लगा कि हमारी जो पावर है डिक्लाइन होगी। और भी अगर हम देखें तो राजनीतिक तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे मुद्दे, अफ्रीका के अंगोला है, मोजाम्बिक है, अफगानिस्तान है, इधर कंबोडिया है, और लैटिन अमेरिका में बहुत से ऐसे कंट्रीज में जहां इनके एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो एक तरह से उसकी ये तो चर्चा बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग है ना कि उसको जो है तो फिर दोबारा से हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे। हाँ, तो लेकिन हमारे छात्रों को ये समझाइए कि दोहा राउंड नेगोशिएशन का जो है स्पेसिफिक उसके बाद दो सवाल हो गए, लेकिन एक तो होगा जो है वो साउथ एशिया की कॉन्टेस्ट में, खास करके इंडिया, और उसके बाद है नहीं कि आसियान की कॉन्टेस्ट में, ठीक है ना। अगर दोहा राउंड जो है नेगोशिएशन जो है फेल हो गया है, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि मैं समझता हूँ हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। और जानकारी के लिए अगर आप लोग कोई हमारी चर्चा को सुन रहे हैं तो मैं समझता हूँ फ़ोन की लाइंस खुली हुई है, हाँ, तो सवाल कीजिए। ये मेरी जो है
आपसे निवेदन है प्रोफेसर कपूर। दोहा राउंड जो अभी जिसका अभी जो नेगोशिएशंस हैं वो एक तरह से बंद हो गई हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई सहमति नहीं हुई है। तो जो यहाँ पर मुद्दे हैं वो थोड़े से पुराने हैं, उनमें से बहुत से मुद्दे जो पुराने हैं वो कंटिन्यूएशन में हैं, नए मुद्दे अभी नहीं हैं, उन मुद्दों पर ही अभी बहस हो रही है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि फिर वही रोनाल्ड रीगन की बात आती है कि 80s के अंदर जब यूरोपीय राउंड को स्टार्ट किया गया था 84 के अंदर, तो वो एक तरह से अमेरिकन डिप्लोमेसी का हिस्सा था जिसमें मल्टीलैटरल लेवल पर ये कहा कि ग्लोबल मार्केट्स खोलनी चाहिए। और यूरोपीय राउंड के अंदर 4 ऐसे मुद्दे उस समय वो लाए जिनको समझते हैं कि उससे जो अंतर्राष्ट्रीय मंडियां वो खुल जाएंगी। उसमें वो 4 मुद्दे थे, जिसे एग्रीकल्चर उसमें इंक्लूड किया गया, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इंक्लूड किया गया, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि ये 3-4 मुद्दे उस वक्त मतलब कि, और बाद में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया। तो 93 के अंदर जब ये कंक्लूजन हो गया यूरोपीय ट्रेड राउंड का, और उसके बाद 1995 में WTO की स्थापना हो गई, तो उसके बाद एक तरह से ये देखा गया कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर कोई खास उसमें से निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को उसमें नुकसान हो रहा है। तो एक तरह से उसके बाद 1996 के अंदर सिंगापुर में के अंदर पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, और बाद में 2001 के अंदर फिर दोबारा से डेवलप कंट्रीज ने कहा कि एक नया राउंड स्टार्ट करना चाहिए, और उस नए राउंड की शुरुआत की गई 2001 में दोहा कतार के अंदर। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो नहीं चाहते थे कि कोई नया राउंड स्टार्ट हो, क्योंकि जो पहले राउंड के जो बेनिफिट्स थे वो ना तो इतने खुलकर सामने आए थे, और ना ही जो कमिटमेंट्स डेवलप्ड कंट्रीज ने वहाँ दी थी उनको उन्होंने पूरा किया था। यहाँ एक बात ये कहना चाहेंगे कि वो ये 2001 में जब ये आया दोहा राउंड स्टार्ट हुआ, तो उस समय एक घटना अमेरिका के अंदर 9/11 जिसको हम कहते हैं, तो उसका काफी असर पड़ा, और उसको मद्दे रखते हुए डेवलपिंग कंट्रीज को ये कहा गया कि आपको इस राउंड को स्टार्ट करना चाहिए। अंतिम में इस राउंड को स्टार्ट किया गया सिर्फ इस बात के ऊपर पर कि इस राउंड को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट राउंड कहेंगे, कि ये राउंड जो होगा ये लोग डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट का होगा। तो दोहा डेवलपमेंट राउंड लॉन्च किया गया। तो इसमें कुछ पुराने मुद्दे थे जिनको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, या इश्यूज विच वर ऑलरेडी डिस्कस, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, उनका असेसमेंट किया जाए, और कुछ नए मुद्दे उसके सामने आए। लेकिन क्विकली आप क्या हमें कह सकेंगे इंडिया का क्या पोजीशन है? इसमें हम ये कहना चाहूँगा अभी जो 2-3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर भारतवर्ष और डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने मत जाहिर किए। सबसे पहला बात जो है एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। सहमति सिर्फ इस बात के ऊपर होनी है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, ये लोग अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा सब्सिडीज देते हैं। सब्सिडी का अर्थात उनको राज्य की तरफ से मदद मिलती है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज चाहती हैं कि वो ना दें, और वो उसके ऊपर अड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर रोकना होगा। मैं प्रोफेसर कपूर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, और समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो चर्चा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, ये बहुत बड़ी है। और अगले हफ्ते आशा करते हैं कि फिर इसी विषय पे हम आगे बढ़ाएंगे चर्चा। धन्यवाद।